गुरु साहिब जी हम भीखक भिखारी तेरे तू निजपत है दाता। ओ दयाल नाम देओ मंगत जन को सदा रहो रघुराता। हो बलिहारे जाओ साचे तेरे नाम बिटहो करण कारण सबना का एको न दूजा कोई रहाओ। बहुते फेर पे कृपन को अब किछ कृपा दीजै हो दयाल दर्शन दे हो अपने ऐसी बख्श करीजै। भरत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया। साची लिव लागी है पीतर सतगुर स्यो मन मानिया।
संत सहाई जी के संत सहाई जी के पद तारनहार पद तारनहार पद तारनहार सासवण तीरण भीतर जूझ मरो तो साधपति जय जूझ मरो तो साधपति जय मेरा बने साथ तेरा
बुद्ध शब्द और विचार दे संग करो ताजो गुरमत दे विचार
अपने हिरद अंदर वस जाए। बस ਇਹੋ ਹੀ अपना सतगुर जी की हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। साध संगत आप सबना ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ कि ਅੱਜ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕ੍ਰਮ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਡੇ। ਪਰ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਫਰੀਦਾਰ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਕਭੀ ਹੀ ਚਲਣਾ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਉਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ ਸਭੈ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰਜਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕਬ ਉਤਾਰ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਜਰੀ ਕੈਲੰਡਰ। ਪਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡੇਰੀਅਲ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਤਕ, ਪੁੰਜਾ, ਚੇਤ, ਗਾਓ, ਸਾਵਣ, ਬਿਜਲੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਈਡੇਰੀਅਲ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ, ਇੱਕ ਲੋਨਰ ਈਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਾਬਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਉਹ ਸੂਫੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਧ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਅਕਲ ਸਰ, ਅੱਖਰ ਕਾ ਪਿਓ ਨਾ ਲਹੰਤ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਘਰ, ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਰਭ ਕਰ।
संगत चर्चा चर्चा दे विच भेद हुंदा है। एक होंदी बात चर्चा कि अपने आप को किसी गल दा नहीं पता तो किसी सियाणे तो पूछ लेना। दूसरी है हेत चर्चा, जे अपने आप को किसी गल दी बाबत कोई पूरी जानकारी नहीं, जानकारी अधूरी है, या कोई डाउट है, शक है, संदेह है, जानकारी ठीक है या नहीं, फिर किसी होर सियाणे सज्जन नाल विचार कर लेने, जिहड़ी गल उसने कह देनी उन्हें ध्यान नाल सुनना, जे समझ लो तो वाह, फिर अपना विचार भी दस देना, फिर दूसरे ने भी उहदा विचार सुनना, फिर अपना विचार दे देना। जिसमें इंग्लिश के विच कहते हैं एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, विचारों का आदान प्रदान, विचारा करते करते किसी ठोस नतीजे ते पहुंच जाना। ते साथ संगत इसमें विद्वानों ने हेत चर्चा की। हेत चर्चा इवें है जिस तरह दो दीवे आमो सामने बालदे हो, एक दीवा बालदा थले हनेरा हो जाता है, उसके सामने एक और दीवा बाल दो तो दोनों दीवे के नीचे चानना हो जाता है। हेत चर्चा। तीसरी जल चर्चा मनी गई। जल चर्चा की है अपनी गल भावें हमें सही भावें हमें गलत है, असि उसको बस सिद्ध करने वास्ते अपने वालों प्रमाण दे ही जाने। साथ संगत चर्चा करनी या किसी ने बहसबाजी करनी है कोई स्किल है। वैसे ना ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। मेरा कहने तो भाव ये नहीं, कहने तो भाव सिर्फ इतना ही है कि बहस करनी ये भी एक कला है, उन्हें बस एक स्किल होता है। अपनी गलत गल को भी सही करने लिए प्रमाण दे जाते हैं। पानी चाहे जी मधानी पाते दूसरे को भी कंफ्यूज कर देते हैं। वो गल भावें किसी निर्णय तक पहुंचे भावें ना पहुंचे, बस उन्होंने अपनी चलानी। ये जल चर्चा। फिर अगे कवितंडा चर्चा, और सब तो खतरनाक कवितंडा चर्चा की है। आपने तो इल्ल ते कुक्कड़ दा फर्क भी ना पता हो कि इल्ल काली है ते कुक्कड़ चिट्टा होता है, इन्नी भी जानकारी ना होवे, पर वाद विवाद करना गुरमुखां दे नाल सियाणे सज्जनां दे नाल। फिर उन्हां दी बाबत गुरबाणी दा फरमान है कि एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो न लहंत। उन्होंने फिर पाशा की कहते हैं नानक ते नर असल खर्ज निर्भर गर्भ कर। तो सासंग जी बहसबाजी है ना, रंचक मात्र भी जानकारी नहीं होती, जब भी थोड़ी बहुत किसी के पास सुन सुना के हासिल की होंगी, वो कई बार बहसबाजी करते हैं। खैर ध्यान दो, इस गल समझना बड़ा औखा है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ये जिहड़ा कैलेंडर दा मामला काफी देर पहला भी चलता रहा। खैर बेनती करन तो भाव कि साडे गुरु साहिबान ने जिहड़ा साइडेरियल पैरामीटर अडॉप्ट किया है ना, उहदे मुताबिक जिहड़ा साल दा पहला महीना है चेत, 2 माह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज ने, एक श्री दसम ग्रंथ दे विच दर्ज है। ये तिन्ने 12 माह पहला महीना उन्हां दा सारे गुरु साहिबान ने चेत ही मन्निया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने पैरोकारों को, अपने गुरसिखां नूं जदों महीने की शुरुआत होवे, जिसनूं आपां आम भाषा दे संक्रांति या संग्रांद कह दिंदे हां, और संग्रांद जैसे महावारी जोड़ मेले समय साध संगत में जुड़ मिलन की प्रेरणा दी, और इसे संदर्भ दे विच साडे सतगुरु साहिबान ने बाणी उच्चारण की। तीन तिथियां होंदियां ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, एक बिलावल राग दे विच साहिब गुरु नानक देव जी ने उच्चारण कीती हुई, एक पंचम पातशाह साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे
विचार थिति गौड़े महला पंजवां के सिरलेख है और एक थिति भगत कबीर जी के द्वारा उच्चारण की गई गौड़ राग विच। दो 12 माह ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच जदों महीने की शुरुआत होवे, साल की शुरुआत होवे, साध संगत विच मिल बैठ के भावें पुरब होवे कोई गुरपुरब होवे, पहला समय दे विच ऐतवार जां शनिचरवार दे कोई विचार नहीं सी हुंदे। उहदे जिहड़े पुरब हुंदे एकादशियां जां अमावस मस्या, इसी तरह पूर्णमाशी संगरांद वगैरह ये पुरब सियाने पुरखां ने नियत कीते, एक किस्म दे नाल छुट्टियां नहीं करदे सन। इन्हां पुरबां समय धर्म स्थानां दी हाजरियां भरदे गुरसिख मिल बैठदे। पहला मैं धर्मशाला कहते सी, हुण गुरुद्वारा कह दिंदे हैं। इसी तरह इस्लाम मत के पैरोकार उन्होंने अपना एक दिन नियत कर लिया, रोज जुम्मा मोमनाने पाक बाज गिरदमी आयंद अज बहर नमाज। सारे जने इकट्ठे होंदे ने, नमाज पढ़ते हैं। रोज जुम्मा मोमनाने पाक बाज गिरदमी आयंद अज बहर नमाज। सारे जने इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं। भाई साहब के भाई नंदलाल जी कथन करते हैं कि कज मुहब्बत बा खुदा दारंग रंग रब दे रंग दे विच रते हुए गुरमुख साध संगत विच जुड़ मिल बैठदे ने। कल मुहब्बत बा खुदा दारंग रंग उन्हां दा ते दिन रोज हुंदा साध संगत च रलन दा बैठन दा, पर गिरदमी आयंद दर माहे 2 बार घट्टो घट 2 बार महीने दे विच ते साध संगत 2 माहवारी जोड़ मेले की परंपरा है साडे गुरु साहिबान दे समय तो ही चली आ रही है। अज भी तुसीं सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जाके वेखो, उत्थे आम दिनां नूं छड्ड दिओ, ऐतवार नूं छुट्टी दा दिन हुंदा है। लोकी अपनी सहूलत देख के उत्थे जाके हाजरी भरदे ने, पर जिस दिन मस्या का दिहाड़ा होवे जां संगरांद का दिहाड़ा हुंदा है, उस दिन संगत की इकट्ठता विशेष होती है। कई कहते इस ब्राह्मणवाद कहते हैं, पर किसी नाम के नाल प्रकार देते हैं, पर पुराने समय दे विच दिन नियत कीते गए सी, उसी तरह ही चलते आ रहे। उस चीज का वहम बना के डर बना के रखना वो ब्राह्मणवाद कह सकते, कि डर कह सकते, पर किसी दिन नियत करके पातशाह नूं मिल जाना तो कोई माड़ी गल नहीं। इस किहड़ी मनमत वाली गल है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने इस गल मद्दे नजर रखते हुए भी संगतां महीने की शुरुआत वाले दिन संगरांद के दिहाड़े साध संगत विच जुड़ मिल बैठदियां ने। अपनी बाणी उच्चारण कीती। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने तुखारी राग दे विच तुखारी छंद महला पहला सिरलेख हेठ 12 माह उच्चारण कीता। चेत बसंत भला भवर सुहावणे चेत महीने द्वारा संगतां नूं गुरमतਿ ਦਾ पवित्र उपदेश दृढ़ करवाया। ते साध संगत साल ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵਣੇ ਚੜ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਲੇ ਰੁੱਤੇ फिर बाजड़ियो मेरे प्यारे आंगन धूड़ लते। ते साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज चेत महीने द्वारा सानू गुरमतਿ ਦਾ पवित्र उपदेश दे रहे हैं। चेत गोविंद आराधी हो। सानू उस गुरमतਿ ਦੇ नाम ਦੇ ਨਾਲ जोड़न ਦਾ महीना भावें ਜਿਹੜਾ मर्जी होवे, उपदेश सिर्फ जुड़न ਦਾ ही गुरबाणी दे नाम दे उपदेश शुभ गुणां नूं धारण करदा ही है, अनिंदनीय कर्मां नूं त्याग करदा ही है। उपदेश सतगुरु जी ने सारी संगत दे चराल मिल के बैठण वास्ते कीता है। सारे महीने दे विच ਇਹ ਜੀਵ परमात्मा को
ਵਿਛੜ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ और परमात्मा ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਗਰ ਔਰ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੱਪੜ ਹੈ, ਛੱਪੜ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੈਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਮਾੜੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਾਦ ਘਾਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਜੀਵ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਛੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੱਡ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। वेदना है जीव की, एक अर्ज है, अर्ज करता है, पुकार है अपने मालिक प्रभु दे अगे। किरत कर्म के विछड़े, कर कृपा मेलो राम। चार पंडित जिस भ्रमे, थक आए तब की शाम। माड़े कर्मा ने विछोड़िया, तेरे चरना तो कृपा करके मेल। माड़े कर्मा ने विछोड़िया, तेरे चरना तो कृपा करके साध संगत
जिन्हों ने इस गल का एहसास हो जाता है कि ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਲੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੇਨ ਦੁੱਧੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਧੇਨ ਭਾਵ ਗਊ, ਸਾਧਨ ਗਊ ਆਪਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਊ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਧੇਨ ਦੁੱਧੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਰ ਕਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ परमात्मा के नाम तो बगैर जीवन भी किसी काम नहीं। परमात्मा के मिलाप तो बगैर ये मानव तन धारे के अर्थ है, यह किस मनोरथ वास्ते है, भाई प्राप्त मानव देवरिया गोविंद मिलने की एक तेरी बरिया। हर ना न मिलिया साजन है पाइए विश्राम, जित कर हर कंत ना प्रगटे पठ नगर से ग्रह। ਉਹ ਕੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਠ ਨਗਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਪੱਠੀ ਵਾਲ। ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਬਗੈਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸਰਦਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। मैं अपना गुर पूछ देखा अवर नाही थाओ। नाम तो बिना जोड़ा जल बल जाने, नाम तो बिना जोड़ा जल बल
ਜਿਤ ਕਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨ ਪ੍ਰਗਟੀ ਪਾਠ ਨਗਰ ਸਿਖਰਾ। ਉਹ ਕੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਝੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਮਨ ਮੋਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। जब मुश्किल हो गया तो पारी, हर को नाम खिल माहे तारे। अनक बोले चारों ने करत नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर रहे। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावस सुख करे। साथ संगत जिन्होंने इस गल का एहसास हो गया, पहला तो एहसास तो यह है कि असीं विछड़े अपने कंत मालक प्रभु दे नाल, और दूसरा एहसास यह कि हर दोनों जहानां दे विच मदद करने वाला वो कालपुरख वाहिगुरू ही है। नाम के सहारे, नाम की कमाई करके उस परमात्मा का मिलाप हो सकता है। साध संगत वो कालपुरख वाहिगुरू के चरणों में अरदास बेनती करते हैं, उन्होंने सतगुरु जी मालक के चरणों में अरदास बेनती करनी सिखाते हैं। नानक की बेनती है कर कृपा मेलो राम। फिर अगे चेत महीने द्वारा सतगुरु जी गुरमत का उपदेश दृढ़ करवा रहे हैं, उपदेश की बख्शिश करवा रहे हैं। चेत गोविंद आराधी है, शुरुआत साथ साथ इत्थे ही हो रही है। उस परमात्मा को आराधन, उसके चिंतन, उसके नाम का सिमरन। फिर की मिलेगा? कड़ा आनंद। चेत गोविंद आराधी है, हो गया अनंत कड़ा। दरिया मन्ने आंदा है, कड़ा दरिया, कड़ा जंगल। कड़ एक है आनंद दा समुद्र, आनंद दा सागर। जेड़ा विषय दा आनंद है एक बूंद दी नहीं, और जेड़ा भजन दा आनंद है जग्यासियों को प्राप्त होता है, वो आनंद दा मानो दरिया है। जब बिरती जुड़ गई बहुत आनंद प्राप्त हो गया। कोई सबब, कोई ऐसा कारण बन गया बिरती ना जुड़े, फिर वो आनंद दे विच विघन पै गया। उस आनंद दे विच घाट आ गई। पहाड़ी इलाकों दे विच बारिश हो गई, दरिया उछल उछल के वग रहे। बारिश ना हुई, वही दरियावां दा प्रवाह मठा पै जांदा। बिल्कुल इसे तरह जेड़ा जग्यासुआं नूं बिरती जुड़न दा आनंद है, बहुत आनंद प्राप्त होता है। जिन्हां दे नाल जुड़े उन्हां च बहुत घाट है आनंद दे विच। हाँ, एक रस होण ते हुंदा, इस घाट वध हुंदी रहती, एक रस कई वारी नहीं भी हुंदा। साथ साथ यह आनंद दा सागर, उस कोई वाद घाट नहीं होया करदा। जिमी जमान के बिखर संसद एक जोत है, ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होता है। उस कोई घाट वाद होती है जेड़ा दुनियावी आनंद है, जेड़ा उस परमात्मा कालपुरख वाहिगुरू दा आनंद है, जिन्होंने उस दे मिलाप दा आनंद प्राप्त किया है, ना उस आनंद विच कोई कमी नहीं।
ਉਹ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਰਸ ਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਕੇ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜੇ ਦਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਰਾਧਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ? ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਪਾਈਏ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ। ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਮ ਆਣ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਨ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਆਪ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਇ ਭਲੇ ਏਕ ਸੰਤ ਏਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਪੋਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ परमात्मा का नाम जिसकी याचना करने वास्ते सन सतगुरु जी प्रेर रहे हैं। हर मेलो स्वामी संत बराबर। इन नाम जपन की दात, नाम जपन की प्रेरणा, विधि, जुगति, ढंग किथों प्राप्त होती है? चेत गोविंद आराधी है होवे आनंद घना, संत जना मिल पाइए रसना नाम पढ़ा। साधन परमात्मा का नाम जप के जिन्ना ने
मंजिल हासिल कर ली है। जिन पाया तब अपना आए तिसे गणा। ना संसार के ना सतगुरु जी ने संभला बोले नानक धन 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 जन आए ते परवान। और धनता योग ने उन्हें संसार ते होना भागा वाला भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन घर धन हर नामा। जिन्हां दे खजाने दे विच नाम रूपी धन है। अपने जीवन दे विच जिन्हां नाम जपिया उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा नाम जपिया और मैडिटेशन में ध्यान कीता उसदा उन्हां दी बाबत सतगुरु जी ने सही मायने दे विच ओ ने शाहूकार प्रमाण गणी सही ए आए। उन्हां दा संसार ते आउणा किसी गिनती दे विच है। प्रमाण गणी सही ए आए सफल तिना के काम। जिन पाया प्रभ अपना आए किसे गणा। जिन्होंने उस प्रभु दा परमात्मा दा नाम नहीं जपिया शक्ल दा इंसाना वाली है पर करतूत पशु की मानस जात। उन्होंने दी बाबत सतगुरु जी की फरमान करते हैं जिन्होंने उस परमात्मा दा नाम जप के उस परमात्मा को भुल के विसार के अपना जन्म बतीत किया फिर उन्होंने दा मानो तन धारा सतगुरु जी ने व्यर्थ हो गया। एक खैंतीस बिन जीवना बाकी सारे जन्मां दी गल छड्डो। सतगुरु जी फरमान करते हैं छिन मात्र वास्ते भी जे विसार दिता ना उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं बिरथा जन्म जणा। उन्हां दा जन्म धारिया है जिन्हें ऐसा हम नाम न चेते हो से काय जग आए राम राजे। ये मानव जन्म दिलम है नाम बिना बिरथा सब जाए। काहे जगे भगती तो हीन Thank you.
तो साथ संगत, जिन्होंने परमात्मा ने साथ दिता, तिन्हां मुख डरावने जिन्ना विसारण ना हो। इत्थे दुख कनेरिया अग्गे ठाव। एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म चढ़ना। उन्हों का मानव तन व्यर्थ है, जिन्होंने मानव तन के मिलन करके भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम नहीं चुकया, अपने हृदय अंदर थां ही ना दी। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। उन्होंने मानव तन धारिया व्यर्थ है। साध संगत, परमात्मा जिहड़ा दुनिया के जरे जरे विच व्यापक है, जलथल महिल पूरिया रविया विच बड़ा परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू, जिहड़ा सबै घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे रहाओ, एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहु नाना रे। सह गुरु अर्जन देव जी महाराज उस परमात्मा दे अकाल पुरख वाहिगुरू दी सिफत कर रहे हैं। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे, प्रतिपाले नित सार संभाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर आराध न जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे। हर जियो नाम परियो रामदास रहाओ, दीन दयाल कृपाल सुख सागर, सर्व कटा पर पूर रे। ओ दया करने वाला है, मानो कृपा दा करुणा दा घर है, सुखां दा समुंदर है और सारे थावां ते व्यापक है। सर्व कटा पूरी भरपूरी रे, एकत सुनत सदा है संगे। जो जीव करता है वो पाउंदा है, जो इंसान बोलदा है सुनदा है। हट पटन बिच मंदिर भन्ना, कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछो देखे, तुझते कहा छुपाए। सो व्यापक होने दे नाते जीव लोकां दे अखां दे विच घट्टा पाउंदा है, जिहड़ा अपने बिल्कुल नेड़े है वो तो किवें पाप छुपा सकता है। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट भय निधान सब जब पछे धर्म राय। सिर्फ एक परमात्मा ही वो हस्ती है, शक्ति है, जेकर उसने भी साथ देता है, जेड़े दुनिया के जरे जरे विच व्यापक है। जलथल महिल पूरिया रविया विच बड़ा, इस तो वड्डी भुल होर की हो सकती है। उसने भी साथ दा दुख भी सतगुरु जी दस रहे हैं कि उसने विसार दिता, सो प्रभ चितना आवई, कितना दुख गणा। वो कितना बड़ा दुख पाउंदा है, तो साथ संगत बहुत बड़ा दुख है। उस परमात्मा को काल पुरख वाहिगुरू बुलावे। सतगुरु जी इत्थे तक फरमान करते हैं, मरणं विसरणं गोबिंद। जिहड़ा काल पुरख वाहिगुरू जे अगर विसर गया तो समझ लो जीवन दा मौत वर्गी है। आखा जीवा विसरे मर जाओ। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी परमात्मा माता अपनी माता तृप्ता जी ने मुखाता वो यही वचन किया सी ना कि जेकर विसर जाता तो मौत होती है, जे नाल रहता है तो जो जीना लगता है। आखा जीवा विसरे मर जाओ, मरणम विसरणम गोबिंद है। जे परमात्मा विसर गया तो समझ लो है कि मौत ही जमीर दी मौत। ज्ञान विसर गया तो जमीर दी मौत होती है। जीवनंग हर नाम त्यागना, परमात्मा का नाम त्यागना यही है जीवन। हाँ, जिन्होंने उस परमात्मा को अकाल पुरख वाहिगुरू को विसार दिता, कितना बड़ा दुख है, बयान ही नहीं किया जा सकता। जलथल महिल पूरिया रविया विच बड़ा, सो प्रभ चित न आवई, कितना दुख गणा। फिर साथ संगत, जिनी रावया सो प्रभु तिना भाग बड़ा। उन्होंने बड़े भाग ने जिन्होंने उस अकाल पुरख वाहिगुरू को त्याया, जिन्होंने उसके मिलाप का आनंद माणिया। हर दर्शन को मन लोचदा,
फिर साथ संगत कोई इंसान पानी की तलाश कदों करेगा? जब उसमें प्यास लगेगी। परमात्मा के मिलाप का कदों कदों परमात्मा के मिलाप की उसਨੂੰ भुख होगी, जब उसਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਲੋਚੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਨ ਕੋ ਕਿਉ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਰਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਏ। हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना। मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई विलप करे चातरी की ने। त्रिखा अंतर शांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हो कोली जियो कोल कुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। एक घड़ी दिनस मौको बहुत ध्यावे, जिन्नी तड़प होवे उस परमात्मा दे मिलाप दी। एक घड़ी मानो दिहाड़ी वर्गी प्रतीत होवे, एक दिहाड़ी बहुत दिना वर्गी। एक घड़ी दिनस मौको बहुत दिहावे, मन नर है कैसे मिलो प्यारे। एक पल दिनस मौको कबो न बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी। कोई ऐसा संत मौको रह मिलावे। मन आस कनेरी दर्शन की, मन आस कनेरी दर्शन की।
मन लोचदार, नानक प्यास मना, चेत मिलाए सो प्रभु। अगे फिर अखीर विच उन्हां दी गल कर रहे ने जिहड़े उस परमात्मा दे मिलाप दे विच जीव दे मददगार होंदे ने, परमेश्वर दे प्यारे संत जन। एक उन्हां दा मिलाप हो जाए तां चेत मिलाए सो प्रभु और तिस कह पाए लगा। प्रभ मिलवे को प्रीत मन लगा, प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी। जिस परमात्मा दे मिलन दी सेक है, फिर उन्होंने मिलना पवेगा जिहड़े उन्होंने पहला मिल चुके, जिन्होंने उस चीज ज्ञान प्राप्त कर चुका है। आप उससे तो ज्ञान प्राप्त कर दिया ना। प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मैं करो बेनती, कहूं संत मिले बड़ भागी। फिर किवें पेश आया जावे? पाए लगो मैं करो बेनती, को संत मिले बड़ भागी। फिर की भेंट उन्हां दे अगे रखी जाती है? मन अर्पो धन राखो, आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी। जो प्रभ की हर कथा सुनावे, अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेटे पुरख रस बैरागी। मिटे अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। सतगुरु जी बख्शिश करन चेत महीने द्वारा जो उन्होंने अपन पवित्र देश दृढ़ करवाया, अपने अंदर वस जावे तां जो कि अपने आपां गुरु जी दे पात्र बन सके। आओ सासंग आप तानू दस्या जावे कि अज बाबा महेंद्र सिंह राणा साहब वाले दी बरसी है, जिन्होंने बड़ी देर सेवा की थी। राणा साहब प्यार दे नाल जथेदार साहब जी करके जाने जाते हैं। बाबा महेंद्र सिंह जी अज उन्हां दा दिहाड़ा भी है। उन्होंने संत बाबा ईश्वर सिंह जी की आज्ञा दे विच रह के बड़ी सेवा की, कीर्तन किया। उन्हें चरणों के आगे दे रह के व्यतीत किया। देखो पहला दा शुमार किसी गिनती विद्वानां दे विच भी हुंदी रही है। कुछ कोटि के विद्वान भी रह चुके हैं। कई गल उलझना खत्म करती उन्होंने कि जिहड़ियां कि कोई ना कर सके, कोई विद्वान ना कर सके। इन्हां रस कहते बड़ा सोहना कीर्तन कराया करते सन बाबा महेंद्र सिंह जी, पर उन्होंने कोई कारण करके गले में कोई प्रॉब्लम होने करके उन्होंने कीर्तन बंद कर दिता सीगा। पहला कीर्तन करते रहे, फिर उन्होंने बाबा भुपिंदर सिंह जी या बाबा अमरीक सिंह जी कीर्तन करना शुरू किया। संगत बहुत हाजरियां भरिया करते। एक बाबा गुलाब सिंह जी जो उन्होंने ड्राइवर सन, उन्होंने भी बरसी है, वो भी उत्थे मनाई जाती राणा साहब। सो जेडे संगतां भी जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, जरूर उत्थे जाके हाजरियां पर। आओ एक धारणा पढ़ के आप समाप्ति करिए, क्योंकि समा बहुत होता जा रहा है, बच्चे ने भी स्कूल भी जाना है। ऐसे
कछ पावे, लाख 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 कई मोरे, को है ऐसो विचार। बिसम 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 ही पई है लाल गुलाब रंगारे, को नानक संतत रस आई है, जो चाह हुआ उसका है। ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਰਹਿਤੀ ਬਣੀਏ, ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਬਾਣਾ ਵਾ ਤਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ। ਬਾਣੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾਣਾ ਵਾ ਤਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣਾ ਦੋਨੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕ ਕਰੋ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਲਝਣਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਤਨ